today's topic is cone. Cone, not a cone, it is a right circular cone. Right circular cone. Why right circular cone? Because in here the height of the cone is perpendicular to the radius of the cone. If the radius is r and height is h and slant height is l. So that's why I am saying this. It is a right circular cone. So what about the base area? The base area is, इसका बेस कैसा है? सर्कुलर है. So what is pi r square? So base area is pi r square. The big problem is what is the curved surface area of this? So before finding the curved surface area, you have to find slant height. It means L. So how to calculate slant height? So simply you have to use Pythagoras theorem in this right angle triangle. इस right angle triangle में आपको क्या यूज करनी है? Pythagoras theorem. क्लास 7 में पढ़ी थी, याद करो. क्लास 7 में Pythagoras theorem पढ़ी थी. Class 10 also we are going to moving in chapter number 6 triangles. But today, so slant height L square is equal to h square plus r square. L square is equal to h square plus r square by Pythagoras theorem. If you want to find L, so you have to take square root on both sides. So L is under root h square plus r square. Slant height will be under root h square plus r square. Now you have to find what about the curved surface area. Okay. So let us assume we have a cone. We have a cone just like this. So you have to cut it from here. ठीक है, हमने ऐसे काट दिया. तो जब हमने कट किया ये कुछ ऐसा बना. कुछ ऐसा बनेगा. ये मेरा सर्कुलर था. इसकी रेडियस क्या ली थी हमने? रेडियस क्या थी? r. So what about this? Circumference is 2 pi r. तो ये क्या हो गया? 2 pi r. क्लियर? ये पहले L थी, अभी भी L है कि नहीं? है कि नहीं? है. अब हमें क्या चाहिए? हमें इसका एरिया चाहिए. So you have to find curved surface area of cone. You have to find curved surface area of cone. अब curved surface area of cone ये क्या है? ये रेडियस L हो गई, ये सेंटर हो गया O. अगर रेडियस L हो गई तो ये सेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? So it is सेक्टर है. तो ये किसके बराबर होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर. क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर. सो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर upon what is circumference of the circle into area of the circle. Clear?
Is it clear? Copy. So arc length of the sector is 2 pi r and circumference of the circle is if the radius of the circle is L, so circumference of the circle is 2 pi L, and if the radius is L of this sector, so area of this circle is this circle. This circle है ना, so area of this circle is pi L square. फिर से समझ लो, मैंने इस कोण को कट किया अराउंड द हाइट, जब कट किया so this is 2 pi r because if the radius is r, so this is 2 pi r. So what is this? This is arc length of the sector. ये क्या नहीं है, सेक्टर ही तो है, इस सर्किल का एक सेक्टर ही तो है जिसकी रेडियस क्या है, l है, जिसके सेक्टर तुम्हें पता है वो क्या है, 2 pi r के बराबर है. तो हमने क्या लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इनटू एरिया ऑफ सर्किल. कौन से एरिया ऑफ सर्किल, इस वाले एरिया ऑफ सर्किल, उसका रेडियस क्या है, l है. सो पाई l स्क्वायर. सिंपली पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 l से 1 l कैंसिल आउट. सो व्हाट इज रिमेनिंग, पाई r l. सो कर्व सरफेस एरिया is curved surface area of cone is pi r l. Is it clear? Copy. Now what about the volume? Volume of cone. Volume of cone. So simply it is the 1/3 of the cylinder. 1/3 of the cylinder. If the volume of cylinder is pi r square h. So what about the cone? Cone is 1/3 pi r square h. The volume of cone is 1/3 pi r square h. Curved surface area is pi r l. Base area is pi r square, and what is remaining? The remaining part is total surface area. So what is total surface area? You have to add base area and curved surface area because there is no top surface area. So base area is pi r square and the curved surface area is pi r l. So you have to take common pi r. So this is r plus l. Total surface. Clear? Now make a copy. Copy. So now the next topic is sphere. So what is a sphere? Just like a ball. देखो कहीं से भी देखोगे ना तुम्हें सर्कल दिखाई देगा. So the total surface area is 4 pi r square if the radius is r. If the radius is r, and total surface area is 4 pi r square and the curved surface area में कुछ होता नहीं है. So what about the volume? Volume is 4 by 3 pi r cube. Volume is 4 by 3 pi r cube. Now the next topic is hemisphere. Now the next topic is hemisphere.
सपोज करो तुम्हारे पास ये स्फीयर था, तुमने इसको कट कर दिया, ठीक है, ये स्फीयर था, तुमने इसको कट कर दिया, तो ये दो क्या बन गए, हेमिस्फीयर बन गए। क्या बन गए, हेमिस्फीयर बन गए। जस्ट लाइक अ बाउल, बाउल देखा है सबने, जस्ट लाइक अ बाउल। अब देखो ये दो पार्ट है, एक ऊपर एक नीचे कट करके तुमने, ये देखो एक ये पार्ट है, ये पार्ट है। अगर टोटल सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो तुमने आधा कट करके निकाल दिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाना चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन वो किसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा ना 2 पाई आर स्क्वायर। तुमने ये इंक्लूड किया नहीं, इंक्लूड किया, होगा इंक्लूड, बिल्कुल होगा। सो दिस टाइप इज सर्कुलर। सो व्हाट अबाउट दिस एरिया, दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, द रेडियस इज आर, so you have to add pi r square also. So what about the total surface area is 3 pi r square. लोगों में कंफ्यूजन होता है, तो बोलते हैं सर स्फीयर का फोर्स 4 पाई स्क्वायर था, हेमिस्फीयर हाफ, सर 2 पाई स्क्वायर। नहीं, एक सरफेस आप जनरेट कर देते हैं, ये सरफेस आप नहीं बना देते हैं। जब आप कट करते हैं तो एक सरफेस और फॉर्म हो जाती है। अगर सरफेस फॉर्म होगी तो यू हैव टू ऐड इन टोटल सरफेस एरिया। बट what about the curved surface area? What about the curved surface area of hemisphere? So it is simple. Curved surface area means just 2 pi r. Curved surface area is 2 pi r. Volume is volume. Volume is also good. If this is 4 by 3 pi r cube, भैया पहले वॉल्यूम क्या था, पूरा था, आधा वॉल्यूम तुमने निकाल के रख दिया, तो अब क्या हो गया, 4 by 3 पाई आर क्यूब का हाफ। तो 4 by 3 पाई आर क्यूब का हाफ इज 2 by 3 पाई आर क्यूब। तो फॉर्मूला इज 2 by 3 पाई आर क्यूब। क्लियर, क्लियर ना? सो कॉपी, पॉज करो, कॉपी करो। तो अभी तक जो बात हो रही थी, दैट्स ऑल अबाउट द सॉलिड्स। अभी तक हमने बात की ट्यूब की, वी टॉक अबाउट द सिलेंडर्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, जितना कुछ बात किया सब कुछ बात किया। इसके बारे में कोन, इसके बारे में बात किया, सब कुछ सॉलिड के बारे में बात किया। नाउ दिस इज हॉलो। Hollow means you have a two radius. You have a two radius. First one is inner and another one is outer radius. So this is hollow cylinder. Hollow right circular cylinder. Right circular cylinder means the height of the cylinder and the radius of the cylinder are perpendicular to each other. So that's why I am saying hollow right circular cylinder. So this looks like this. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखेंगे। चलो, सो ये अभी क्या है, ये अभी क्या है, सॉलिड है। तो हमें क्या करना है, फॉलो करना है। सो यू हैव टू मेक अ वन सिलेंडर इनर साइड। सो दिस इज जस्ट लाइक अ पाइप। पाइप देखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पाइप या फिर ट्यूब्स देखे होंगे जो वाटर फ्लो करने के पाइप यूज करते हैं, ऐसा कुछ सेम उसी टाइप। अब देखो उसके पास दो रेडियस हैं। फर्स्ट वन इज इनर रेडियस, दिस वन इज इनर रेडियस, इट मींस r1 या फिर लोग ri बोलते हैं, r इंटरनल, दो तरीके के हो सकते हैं, i बोलते हैं लोग, r1 बोलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज outer radius, this is r0 या फिर r2। r0 मतलब outer radius। So let
let the inner radius is ri, एक लिख सकता हूं ri, दो चीजों को कंफ्यूजन होता हूं, so I am just taking one ri and r, बहुत अच्छा लगता है, ri and r, so inner radius of the cylinder is ri and the outer radius is r naught. Clear? अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो सिलेंडर है, एक अंदर है एक बाहर है, ठीक है? कैसा कि देखो, सपोज करो ये दिस इज नॉट दैट मैटर फॉलो व्हाट आई रिक्वायर्ड, बट समझा सकता हूँ मैं, डोंट वरी। तो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, हॉलो है, इस पार्ट को भी भूल जाओ, सोचो कि ये भी ब्लैंक है, सपोज करो। सो आउटर रेडियस जो है इसकी, जो बाहर दिख रही है, ये आउटर सर्कमफेरेंस है कि नहीं? और ये क्या है? इनर सर्कमफेरेंस है। इट मींस इसमें दो रेडियस तुमको दिख रहे हैं, एक आउटर एक इनर, और ये थिकनेस हो गया, ये क्या हो गया? थिकनेस। थिकनेस ऑफ द सिलेंडर और ये सब कुछ पढ़ लेना आगे, अभी नहीं। आर नॉट आर वन एल वाला रेशियो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसकी हाइट ऑफ द सॉरी, ये थिकनेस के बारे में आपको डिटेल मिलेगा इंजीनियरिंग पार्ट, इधर नहीं डिस्कस करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड, सिंपली यू हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, आई नो टोटल सरफेस एरिया बहुत शांति से देखा, इधर टोटल सरफेस एरिया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सरफेसेस देखो कौन कौन सी सरफेस यूज हुई है हमारी, कौन सी? ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। इनर सरफेस किससे बनी है? क्या रेडियस इसकी? आर आई। कैसी सरफेस है? कर्व सरफेस है। ये क्या होता था फॉर्मूला? 2 पाई आर एच होता था। कब होता था आर एच? जब रेडियस क्या होती थी? आर। नाउ हियर इज रेडियस इज आर आई, तो आर आई व्हिच, तो किस वाली सरफेस की बात होगी? इनर वाली सरफेस। एक काम पड़ गया, वेरी गुड। नाउ आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया मींस ये भी तो यूज हुई है। सपोज करो तुमसे किसी ने बोला कि इसको पेंट करना है, तो तुमने क्या किया? इनर पार्ट को पेंट किया, आउटर पार्ट को पेंट किया, और ये जो बाउंड्री है तुमने इसको भी तो पेंट किया, तो तुम्हें सबका एरिया चाहिए। अगर सपोज करो तुमने ये एरिया निकालना भूल गए, ये जो थिकनेस वाला एरिया है, तो तुम्हारा नुकसान होगा। सो 2 पाई आर एच इसका एरिया, इसका। अब क्या? बाहर वाला चाहिए, इससे भी कर्व बना हुआ है, ये भी कर्व सरफेस एरिया है, आउटर रेडियस है 2 पाई आर नॉट एच। दो काम पड़ गए, ध्यान से देखो। अब जरा इसको ऊपर से देखोगे ना, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, एक सर्किल के अंदर ये बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, ये बिल्कुल ब्लैंक स्पेस है, ये देखना बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये रेडियस तुमने क्या बोली थी? आर आई बोली थी, ये रेडियस तुमने क्या बोली थी? आर नॉट बोली थी। ये रेडियस तुमने क्या बोली थी? आर आई। ये रेडियस क्या बोली थी? आर नॉट। अब तुम्हें क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए। क्लास 7 में पढ़ा था, याद करो, क्लास 7 में पढ़ा था रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं तो छोटे भाई बहनों से पूछना, क्लास 7 में जो पढ़ते हैं बता देंगे क्या होता है रिंग का फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर। अब आउटर रेडियस से माइनस करोगे ना, आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई। अब जैसे ये ऊपर है, जिस तरह ये ऊपर, उस तरह क्या है नीचे है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर? क्लियर ना? So what is the remaining? Volume. Very good. बाहर वाली रेडियस क्या थी? आर नॉट थी। So volume is pi r naught square h minus इनर वाला वॉल्यूम
ये तुम्हारे पास था, इस तरह से था, ये सॉलिड था, तुमने इससे निकाल लिया, एक अंदर वाला सिलेंडर निकाल के बाहर रख दिया, तो क्या तुमने निकाला, उसको लॉस हुआ ना, लॉस हुआ मतलब माइनस R into H। अगर तुम्हारा मन हो कॉमन ले लो, ये क्या हो गया, सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। क्लियर, कॉपी। हो गया कॉपी। So one thing is remaining is curved surface area of the cylinder। थोड़ा skip हो गया, तो curved surface area of a hollow cylinder, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्व सरफेस एरिया मींस टॉप सरफेस एरिया बॉटम सरफेस एरिया होता है, तो टॉप सरफेस एरिया बॉटम सरफेस एरिया मतलब ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, गायब, क्या बचेगा, only this one is, so you have to write 2 pi r I into h plus 2 pi r naught into h, so you have to take common, 2 pi h is common, so this is r naught plus r I c s a। So curved surface area of hollow cylinder, this is volume, this is total surface area, so this is total surface area। तो hollow cylinders खत्म हो गया, so one thing is remaining, the two things is remaining, first one is spherical cell and the last part is frustum। spherical cell अभी और डिस्कस करना है, so कॉपी हो गया हो तो so now the next topic is spherical cell। spherical cell आपने देखिए इसे बॉल होती, कॉस्को की बॉल देखी ना, जब उसको आप कट करोगे तो अंदर बिल्कुल खाली होता है, सेम वैसे स्फेरिकल सेल होता है, उसके अंदर एक और सेल होता है, उसको दिखाना थोड़ा सा, उसके पास दो रेडियस होती है, जैसे हमने हॉलो सिलेंडर देखा, जैसे मान लो सपोज को दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज कैपिटल R। सो इसका टोटल सरफेस एरिया सिंपल है, व्हाट इज 4 pi r स्क्वायर टोटल सरफेस। आप ये इनर वाला इसमें काउंट करते हो, उसका कारण इनर वाला इसके काउंट किया, क्या कैच तो कर ही नहीं पा रहे हो विदाउट कटिंग करते तो फिर स्फेरिकल सेल कहां रहेगा, हेमिस्फेरिकल सेल हो जाएगा, सेल कैसा, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया इज 4 pi r स्क्वायर। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, so वॉल्यूम इज, अब देखो सॉलिड स्फीयर था, ऐसा था, तुमने लिख दिया था सीधे रेडियस देखते 4 pi 3 pi r क्यूब। अब इसके अंदर से तुमने निकाल दिया, तुमने अंदर से वॉल्यूम रिड्यूस किया, इट मींस माइनस साइन है, देन अगेन वो भी क्या है, स्फेरिकली तो है, 4 pi 3 pi r क्यूब। So what about this? We have to take common 4 by 3 pi and r cube minus r। So this is all about। So next topic is hollow hemisphere। hollow hemisphere कुछ ऐसे दिखते हैं, बाउल है ना, बाउल होता है hollow hemisphere, तो ये रेडियस हमारी होगी स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r।
is small r, this is capital R. So what about the total surface area? अब देखो ये आउटर है, इसका क्या हो जाना चाहिए? 2 पाई r स्क्वायर हो जाना चाहिए लगेंगे। तो मैं टोटल सरफेस एरिया लिखता हूँ। तुम्हारे पास बाउल ही थी, तुमने कट कर दी। सॉरी बाउल था तो उसका टॉप सरफेस एरिया मतलब आउटर सरफेस एरिया समझ लो। जो आउटर सरफेस एरिया था वो कैसा था? 2 पाई r स्क्वायर कैपिटल वाला r स्क्वायर, फिर प्लस भैया अंदर वाला सरफेस एरिया ऐड होगा। क्लियर कर लो, ये मत सोचो कि अंदर वाला सरफेस एरिया क्या है, तो नहीं होगा। यू हैव टू काउंट, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरनल सरफेस एरिया। इंटरनल सरफेस एरिया किस रेडियस से मेजर करोगे? स्मॉल r। सो दिस इज आल्सो 2 पाई r स्क्वायर। क्लियर ना? तो दिस इज आल्सो 2 पाई r स्क्वायर। अब बात आती है कि क्या ये सरफेस एरिया काउंट होगा? ये शेडेड पार्ट बिल्कुल काउंट होगा। इसको हम कैसे काउंट करेंगे? ये है क्या? सर्कुलर है, so this is pi again r square। कौन सा r स्क्वायर? कैपिटल R स्क्वायर। भाई आउटर सर्कल्स में तुमने क्या किया? इनर सर्कल एरिया क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आउटर सर्कल एरिया इज कैपिटल pi r स्क्वायर, इनर सर्कल रेडियस इज स्मॉल r, so एरिया इज pi r स्क्वायर। ये डायरेक्ट है pi r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, रिंग वाला फॉर्मूला डायरेक्ट। So you have to take a common. I think this is 2 pi r square plus 2 pi r square plus pi r square minus pi r square। तो भैया ये क्या हो गया? 3 pi r square एंड प्लस इसमें से 2 कट दिया, 2 pi r square minus pi r square लाइक टर्म्स है ना, तो कट दिया। So this is I think this is total surface area of hollow hemisphere। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर? नाउ द कर्व्ड surface area। So कर्व्ड surface area, what about the कर्व्ड surface area? तो भैया कैपिटल R से जो रेडियस का कर्व्ड surface area बन रहा है, ये जो तुम्हारा बनता है ना बाउल, कहां से लगेगा? ये है ना सपोज हेमिस्फीयर, ये वाला एरिया हो गया ना 2 पाई r स्क्वायर। सिमिलरली इंटरनल वाला एरिया भी काउंट होगा कर्व्ड में। सो दिस इज 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो यू हैव टू टेक कॉमन 2 पाई तुमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r। क्लियर? And the last thing is remaining. What about this? What is remaining? Volume. Yeah, very good. So what about the volume? If the volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube, so what about the hollow? Hollow का सिंपल सा मतलब है खोखला, मतलब आपने कुछ ना कुछ पार्ट उससे निकाल रखा है। अब hollow hemisphere है मतलब अंदर से उसने हेमिस्फेरिकली पार्ट निकाला है, समझ लो। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2 by 3 pi r क्यूब मतलब कैपिटल R। अब उसमें तुमने निकाल लिया है, सॉरी दिस इज क्यूब। अब तुमने इसमें से क्या निकाला है? स्मॉल r और रेडियस का हेमिस्फीयर तुमने निकाल लिया है। तो क्या कितना वॉल्यूम निकाल लिया है? 2 by 3 pi r क्यूब। क्लियर? यू हैव टू टेक अ कॉमन 2 by 3 pi कैपिटल R क्यूब माइनस। So this is volume. So this is volume. सब कुछ डिस्कस हो चुका है। Each and everything is discussed in this topic except rest term। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्यूब डिस्कस किया पूरा 3D, उसका सब कुछ डिस्कस किया, उसकी डायग्राम डिस्कस की, उसका हमने कर्व सरफेस एरिया डिस्कस किया, डबल सरफेस एरिया डिस्कस किया, इवन हमने वॉल्यूम डिस्कस किया, बेस एरिया डिस्कस किया। सिमिलरली फॉर क्यूबॉइड भी, देन सिलेंडर, देन कोन, देन स्फीयर, देन हेमिस्फीयर, देन हॉलो सिलेंडर, देन स्फेरिकल सैंड, एंड द लास्ट टॉपिक इज हॉलो हेमिस्फीयर। एंड
and the one thing is remaining is frustum. Thank you class.